हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब आप मुझे देख पा रहे हैं. ओके, आई एम selecting a burning topic, name is equilibrium constant. Equilibrium, equilibrium constant. Whole topic of equilibrium constant we will discuss in following segment. First one is following 8. First one is importance and introduction. Second one is pattern of questions. Third one is some previous questions. Fourth one is its need. Fifth one is definition. Sixth one is forms and interrelationship between their forms. Seventh one is application. Unit of Kp and Kc. Eighth one is application. Okay. Then I am taking a burning topic, name is equilibrium constant. Before going to tell about them, we should be introduced myself. My name is Sanjay Pathak and I am teacher as well as faculty of chemistry. Previously 10 years, more than 10 years, I have been taught different coaching institute as well as schools. Okay, this is my brief introduction. Okay, now let me start one by one. First one is application. And first one is importance and introduction. In point of view, exams like medical test or non-medical test, it means NEET and JEE Mains and advanced. This one is very most important. Because of this, whenever I observed your previous question paper, then I got at least one question taken from this topic. At least it may be more than one.
Okay, it is very interesting matter that relatively it is very relatively it is difficult, but this is deciding factor of your success. Okay, introduction. This is a topic of physical chemistry of equilibrium. This is relatively very interesting and scoring as well as easy. And you can get a score within few minutes, not second. It is depending upon the type of questions. Okay. Second one is pattern of question. Pattern of questions. This question may be isolated or uh, mm, isolated or comparatively. Okay. Okay. First one is direct question. Direct. Second one is to calculate value of pH or POH at equilibrium stage. Equilibrium stage. Of reaction. Third, direction of reaction. Direction of reaction. Fourth, stability or the stability of reactant or product. There are many types of questions which are based on the equilibrium constant, but I am mentioning here only few. Okay. Next question क्या है आपका? Next topic, some previous question. Some previous questions. A. JEE Maths 2024. Almost 9 questions taken from this topic. Only few are mentioning here. First one is if value of Kc for this reaction for following reaction is reaction such as 2SO2 plus half
plus half O2 gas is equal to 2SO3. वैल्यू कैसी क्या क्या है आपका 4.9 into 10 to power minus 2. Then calculate value of Kc, value of Kc for अच्छा एक हाँ ठीक तो है अच्छा ए नहीं है आपका सॉरी ये आपका 2SO3 है गैस है चेंज हुआ किसमें आपका 2SO2 गैस प्लस हाफ O2 आपको कैलकुलेट करना किसका आपका 2 करना है आपको 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3 कैसी की वैल्यू क्या होगी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए कम से कम 9 आपके जेईई में इसमें ओके अच्छा मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिखता हूं किसका नीट का टू ए इक्वल टू बी प्लस सी इसका के सी का वैल्यू क्या है आपका के सी का वैल्यू आपका 4 into 10 to power minus 3 then calculate if concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of C is that 2 into 10 to power minus 3 molarity then calculate value of Kc ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो कि काफी इजी होते हैं लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है क्यों क्योंकि आप यदि ठीक से पढ़ लेंगे ना कॉम्प्लिकेशन सभी दूर हो जाएंगे आई थिंक दैट इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड with carefully then all type of problems sort out by this video it is my guarantee okay इट्स नीड खुद के आपका डी इट्स नीड एट गिवन condition
ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो ए से बी में, ये प्रोसीड होगा कि नहीं, ये आपका ए से बी में कन्वर्ट होगा कि नहीं, इट कैन बी डिटरमाइंड बाई ए थर्मोडायनामिक terms, that is डेल्टा जी। किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू यदि आपका निगेटिव होता है, then it will be proceed and complete। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है आपका, फर्स्ट सेकंड, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है आपका, पॉजिटिव, देन इट विल बी नेवर एट ऑल नॉट प्रोसीड। यदि प्रोसीड नहीं होगा तो खत्म होगा, उसके बारे में सोचेंगे नहीं। यदि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, थर्ड, डेल्टा जी की वैल्यू यदि आपका 0 होता है, देन इट विल प्रोसीड बट not complete, but not complete। Then an equilibrium is formed between reactant and product, between A and B, it means reactant and product। ओके, अब एक प्रश्न उठता है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेज इट विल बी इक्विलिब्रियम फॉर्म बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कितना, हाउ फार रिएक्शन विल गो एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज पर जाने के लिए कितना दूरी तय करेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसको समझने के लिए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए के का वैल्यू है, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन उतना अधिक होगा, और के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना दूरी तय करेगा। ओके, समझ गए आप लोग? इसको दूर करने के लिए देखो के आपका काम करता है, फंक्शन करता है केवल इक्विलिब्रियम स्टेज पर। हाउ फार मतलब कितना दूर जाएगा कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंचने के लिए। सपोज कर लो इक्विलिब्रियम स्टेज मान लो यहाँ आपका हो गया, तो आपका के का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये आपका कौन डिटरमाइन करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करता है। इसको इसकी जरूरत हुई के का, इसको बताने के लिए। ओके, नाउ सेकंड नेक्स्ट क्या है आपका डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है आपका ई डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन को जानने के लिए हमको 3-4 टर्म आपको आना चाहिए। आई थिंक सो दैट यू शुड बी नो अबाउट देम।
अब नहीं चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज एक्टिव मास, एक्टिव मास। सेकंड वन इज लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन। थर्ड इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ब्रियम। देखो के का डेफिनेशन, के मतलब इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन आपको बेटर तरीके से समझने के लिए आपको इन तीन टर्म का वैल्यू आपको आना चाहिए। अच्छा, एक्टिव मास क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा बता रहा हूं। सपोज कर लो कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बॉयज स्टूडेंट। ये बच्चे किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट हुए सभी, उसमें से आपका 70 आपका वो एग्जाम को पास कर लिया, मतलब क्वालिफाई कर लिया, और आपका 30 बच्चे क्या हो गए, उस क्वालिफाई नहीं कर सके। जो पास हो गए उसे कहते हैं क्या, एक्टिव मास। जो आपको क्वालिफाई नहीं कर सके उसे कहते हैं क्या, पैसिव मास। तो मतलब कि कहने का मतलब केमिस्ट्री में ऐसी बात है, केमिस्ट्री में मान लो सपोज कर लो 10 आपको मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, इसमें से केवल कुछ ही मॉलिक्यूल, मान लो 5 मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में चेंज हो गया। एक क्या आपका रिएक्टेंट, क्या आपका रिएक्टेंट, क्या आपका प्रोडक्ट जो चेंज हो गया उसे कहते हैं क्या, एक्टिव मास। जो चेंज नहीं हो सका उसे कहते हैं क्या, पैसिव मास। कहने का मतलब इसमें आपका दोनों है, कौन कौन, एक्टिव और पैसिव दोनों है। मास, मास। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं मैं क्या करना चाहता हूं। अच्छा, इसको इसे कहते हैं क्या, इनके साथ केमिस्ट्री में एक्टिव मास को ही कहते हैं, एक्टिव मास को कहते हैं क्या, मोलारिटी, मोलारिटी। या इसे कहते हैं क्या, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। इसको आपको लिखा जाता है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में। सपोज करो कि आई एम राइटिंग नाउन Na इन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब हुआ इतना Na कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, अच्छा, अल्लाह मास एक्शन क्या होता है? देखो एक कौन किया था, गुलबर्ग, गुलबर्ग एंड वागे। अकॉर्डिंग टू हिम, अच्छा ये रिएक्शन किसके लिए, केवल केवल आपा फॉर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बस। अकॉर्डिंग टू हिम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा, रिएक्टेंट का, उतना तेज आपका रिएक्शन का रेट होगा। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, मैं मतलब दूं इसे, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बताने के लिए ना थोड़ा स्ट्रेस चाहिए।
लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, जो मैं आपको प्रीवियस से बताया ना, इफ लॉ ऑफ मास सेक्शन is applied on reversible reaction, then it is called law of equilibrium, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, इसे मिटा दूं। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, सपोज कर लो A प्लस बी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपका C प्लस D में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, दोनों आपको बुला लेते हैं क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। A प्लस बी कन्वर्ट हुआ किसमें, C प्लस D में, और सेकेंड क्या है आपका, C प्लस D कन्वर्ट हुआ किसमें, A प्लस B। देखो एक क्या आपको कौन सा रिएक्शन, ऐसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे कहते हैं क्या, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। अच्छा, इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग इसे आर एफ लिखते हैं। आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक यूज करते हैं क्या, एक आपका कांस्टेंट का यूज करते हैं, यानी कह सकते हैं क्या, आर एफ इक्वल टू के एफ ए एंड बी। ये आपका रिएक्शन हो गया का फर्स्ट हो गया। अच्छा, बाई मतलब सेम लाइक इसके लिए क्या होगा, आर बी के बी ए सॉरी सी डी। अब यहां पर आपका आर एफ क्या है, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पर आदमी क्या आपका, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन।
Kb क्या है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड एक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड एक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर आपका ए क्या है आपका? इन स्क्वायर ब्रैकेट ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, इस रिएक्शन क्या होता है, एक बार आपको पहले रिएक्शन में ए आपका डायरेक्शन बन गया आपका, सेकेंड रिएक्शन क्या हुआ आपका, ए आपका डायरेक्शन बन गया आपका। इसको मान लेते हैं क्या आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होता है, आर एफ इक्वल टू आर एफ इक्वल टू आर बी कर सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट डाउन के एफ ए बी इक्वल टू के बी सी एंड डी। अच्छा, इसको हम वैसे लिख सकते हैं, ए पार्ट इधर चला गया, ए पार्ट इधर आ गया, यानी कह सकते हैं के एफ के बी बराबर क्या हो गया, सी डी ए बी हो गया आपका। अच्छा, आपको याद होना चाहिए ए और बी क्या है आपका रिएक्टेंट, सी डी क्या है आपका प्रोडक्ट, यानी कि अब इसका आपका क्या है आपका कांस्टेंट का है आपका, इसका जो रेशियो होता है उसको ए कांस्टेंट कहते हैं, उससे कहते हैं के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट concentration of product upon concentration of reactant। यहाँ पर क्या है, इसे कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अच्छा, इसे कह सकते हैं क्या, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कह सकते हैं, ये इसका डेफिनेशन है। तो देन यू कैन डिफाइन दैट, के को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, then we can define as equilibrium constant is ratio of molar concentration or active mass of masses of product and reactant at equilibrium stage।
stage of the reaction ओके। यहाँ तक मैं आपको बता दिया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसका? K इक्वल टू क्या पा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब यहां से हम चलो आगे चलते हैं अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी।